خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے ہمارے نمائندہ ارشد محمود سے۔ منڈی بہاؤدین جہاں اوورسیز کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اوورسیز فورم کے چیئرمین محترم شاہد رضا رانچا اور ان کی ٹیم کی طرف سے پنجاب پولیس منڈی بہاؤدین بالخصوص محمد عامر شاہین گوندل، ڈی ایس پی سی آئی اے اسٹاف انسپکٹر سید حسنات شاہ، ایس ایچ او تھانہ صدر ارمغان مقصد گوندل، ایس ایچ او تھانہ کھٹیالہ شیخا اور ان کی ٹیم کو اغوا شدہ بچوں کو باحفاظت بازیاب کروانے پر ڈی پی او آفس میں تعریفی شیلڈز اور نقد انعام دے کر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے ون پلس نیوز کے سی ای او عامر شہزاد لک سے۔ تھانہ گوجرا کے علاقے ڈنگے پل بوسال کے قریب 16 من مضر صحت گوشت گاڑی پر راولپنڈی لے جاتے ہوئے ایک ملزم گرفتار، دوسرا فرار ہو گیا۔ ملک وال سرکل کے تھانہ گوجرا کے علاقے بوسال میں ملزمان شبیر احمد اور اظہر اقبال عرصہ دراز سے مردہ اور بیمار جانوروں کا گوشت راولپنڈی اور اس کے ملحقہ علاقوں میں سپلائی کرنے کا دھندا کرتے ہیں۔ ملزمان 16 من مضر صحت گوشت گاڑی میں لے جا رہے تھے کہ ڈنگی پل پر پولیس نے گاڑی اور گوشت قبضے میں لے کر ایک ملزم اظہر کو گرفتار کر لیا، جبکہ شبیر فرار ہو گیا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گوشت کو تلف کر دیا۔ السلام علیکم، میں بطور ایس ایچ او تھانہ گوجرا تعینات ہوں۔ ڈی پی او صاحب منڈی بہاؤدین کی ہدایت کے مطابق ہم نے یہ کارروائی کی ہے۔ یہ کافی عرصہ سے کام کر رہے تھے گوشت ادھر موثر گوشت جو ہے وہ لے کے جاتے تھے راولپنڈی اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ ادھر جو ڈنگر جو بھی مرا ہوا انہیں مل جائے وہ یہ لے جاتے ہیں۔ ہمیں کافی اطلاع ملی تھی کہ یہ لے کے جا رہے ہیں، تو ہم نے ناکہ لگایا ہوا تھا۔ یہ ہم نے ناکے پر ان کو روکا اور ایک آدمی شبیر احمد نامی وہ بھاگ گیا ہے۔ یہ جو آدمی ہے ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور گوشت ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر آئے ہیں۔ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ یہ گوشت ناقص ہے اور عوام کو یہ گوشت کھلانا غیر اخلاقی ہے اور جرم ہے۔ ایسا گوشت عوام کھائے گی تو عوام بیمار ہو جائے گی، اس لیے ہم نے رات کو ناکہ لگا کر اس کو چیک کیا ہے۔ ڈی پی او صاحب نے حکم دیا تھا کہ اس کو ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے اور ہم نے اسے گرفتار کیا ہے اور اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے ہمارے نمائندہ ارشد محمود سے۔ منڈی بہاؤدین جہاں محکمہ فوڈ اتھارٹی کا دودھ فروش کو 75,000 جرمانہ کرنے اور غریب دکاندار کا 3 معصوم بچے فروخت کرنے کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے 20,000 روپے کی قسط اپنی جیب سے ادا کر دی۔ دکان کو ڈی سیل کر دیا گیا، باقی جرمانہ کے ساتھ میں جمع کرانے کی ڈپٹی کمشنر نے ذمہ داری لے لی۔ منڈی بہاؤدین ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی لاہور نے مقامی دودھ فروش محمد اختر کو دودھ میں ملاوٹ کی بنیاد پر 75,000 روپے جرمانہ کر کے دکان سیل کر دی تھی۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی استطاعت پر متاثرہ شخص بچے فروخت کرنے کی خبر میڈیا پر آنے کے بعد ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے نوٹس لے لیا اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب سے جرمانے کو ایک ساتھ میں ادا کرنے کی اجازت ملنے پر ڈپٹی کمشنر طارق بسرا نے متاثرہ شخص محمد اختر کا جرمانہ 20,000 کی پہلی قسط اپنی جیب سے ادا کر دی، باقی ایک ساتھ کی ادائیگی کی یقین دہانی کرا دی، جبکہ محکمہ فوڈ اتھارٹی نے جرمانہ وصول کرنے کے بعد دودھ کی دکان ڈی سیل کر دی۔ ڈپٹی کمشنر طارق بسرا کے انسانی ہمدردی کے اقدام کو شہریوں نے خوب سراہا ہے۔ کراچی سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ارشد محمود کی رپورٹ کے مطابق پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن آف پاکستان نے شہری تنظیم پاکستان یوتھ ونگ کے تعاون سے قائد اعظم یوتھ کنونشن کا اہتمام کراچی سوک سینٹر کے ہال میں 17 دسمبر 2020 کو منعقد کیا۔ بریگیڈیئر قرار حسین صاحب نے شہر کراچی میں بلوث ادبی اور سماجی خدمات انجام دینے پر شہری تنظیم پاکستان کے سینئر وائس چیئرمین الحاج ابو البرکات، وومن ونگ کی صدر ڈاکٹر روبینہ یاسمین، یوتھ ونگ کے صدر اسامہ درویش، کراچی ڈویژن کے صدر سید جعفر علی، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر محمد سہیل کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا۔ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں کراچی کی ادبی، فلاحی اور سماجی شخصیات کے علاوہ حاجی حنیف طیب نے بھی شرکت کی۔ نواب شاہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق نواب شاہ میں جنون کرکٹ کلب کی جانب سے سکرنڈ اور نواب شاہ کی ٹیم کے درمیان ون ڈے میچ کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں کی جانب سے دلچسپ مقابلہ کیا گیا، جس میں سکرنڈ ٹیم نے نواب شاہ کی ٹیم کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی، جبکہ میچ کے مہمان خاص سندھ کی متحرک تنظیم شاہ سچل سامی فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو لالا ارشد خاص خیلی تھے۔ انہوں نے جیتنے والی ٹیم میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر شاہ سچل سامی فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو لالا ارشد خاص خیلی نے کہا کہ صحت مند زندگی کے لیے نوجوان کھیلوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ سکرنڈ کی ٹیم اچھی پرفارمنس دکھا کر ٹرافی اپنے نام کرنے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آخر میں کھلاڑیوں کی جانب سے مہمان خاص لالا ارشد خاص خیلی کو سندھ کی ثقافت اجرک کے تحفے پیش کیے گئے۔
से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा एहसान उल हक से कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद ने कहा है कि 16 दिसंबर 2014 का दिन हमारे अजहान से कभी ना मिटने वाला एक सियातरीन दिन है। दुनिया की तारीख मैक्सीबी दरसगाह पर होने वाला ये अपनी नौइयत का पहला हमला था। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के अजीम शोहदा के खून का हर कतरा इस मिट्टी पर कर्ज है। शोहदा बच्चे और असातिज़ा पूरी कौम के हीरो हैं और उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा की 6ठी बरसी के मौके पर जिना हाल कंपनी बाग में मुनक़िदा उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस बराए कौमी इत्तेहाद से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। कॉन्फ्रेंस में मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी इफ्तिखार हुसैन गोंदल, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नियर शेख, ADC हेडक्वार्टर अरशद पट्टू, असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल, जोनल खतीब औकाफ चौधरी अब्दुल शकूर, एडमिनिस्ट्रेटर काजी जफर अमीन और डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम के अलावा उलमा और मशाइख ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कमिश्नर ने कहा कि सानेहा APS को 6 साल बीत गए हैं। दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले मासूम और बेगुनाह बच्चों के वालिदैन आज भी अपने प्यारों की याद में अश्कबार है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन का दाई मजहब है। रसूल अल्लाह का पैगाम अमन, मोहब्बत, अख़ुवत और आज़ादारी है। इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। मसाजिद, दरसगाहों, बाजारों और अक़लीती इबादतगाहों पर हमला करने वालों का कोई दीन मजहब नहीं होता। कामयाब कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद रखती हैं। शहीद की मौत कौम की बका है। पूरी कौम अपनी अफवाज की लासवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद ने मज़ीद कहा कि शोहदा APS की अजीम कुर्बानियों के तुफैल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम का मिसाल इत्तेहाद और इत्तेफाक सामने आया है। हमें आज इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के आज़म की तजदीद अहद करना है जिसके खातिर मासूम बच्चों ने अपनी जानें कुर्बान की। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला निगर शेख ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। नन्हे फूलों ने अजीम मकसद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि शहीद बच्चों की अजीम कुर्बानियों ने कौम को नया हौसला और आज़मत दिया। सफाक दुश्मन को शिकस्त हुई और पाकिस्तान अमन का कहवारा बना। उन्होंने कहा कि पूरी कौम शोहदा APS के खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। APS पेशावर के बच्चों और असातिज़ा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। बच्चों ने अपने कीमती लहू से महफूज और पाकिस्तान की तारीख लिखी। महफूज और पुरअमन पाकिस्तान के बुनियादों में बच्चे का खून शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि सानेहा APS के बाद मुल्क भर में कामयाब ऑपरेशन करके दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया गया। दरसगाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई और बच्चों के तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात उठाए गए। नवाब शाह से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग डिवीज़न बेनज़ीराबाद के सदर अख्तर हुसैन रिंद की सदारत में ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के सदर असद हुसैन जरदारी, डिवीज़नल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद बालादी और यूथ विंग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फरहान अहमद लगारी की सरबराही में ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग के वर्करों का अपनी कायद शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शरीक होने के लिए दिसंबर को बरसी में शरीक होने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग के 60 वर्करों का पैदल काफिला जिला शहीद बेनज़ीराबाद से गड़ी खुदा बख्श के लिए रवाना हुआ, जो रात ताल्लुका काजी अहमद में ठहरा। सुबह ताल्लुका काजी अहमद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग का पैदल काफिला जिए भुट्टो के नारों के सदा को बुलंद करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग के जिले शहीद बेनज़ीराबाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फरहान अहमद लगारी ने मीडिया को बताते हुए कहा कि हमारे कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान की जमहूरियत और अवाम की खातिर अपनी जान का नजराना दिया है। हम शहीद बीबी के पैरोकार हैं, इसलिए हमने जिला शहीद बेनज़ीराबाद से पैदल काफिला निकाला है, जो गड़ी खुदा बख्श पैदल जाकर 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर शहीद बीबी को खिराज तहसीन पेश करेंगे। जड़ावाला से हमारे सिटी रिपोर्टर मियां मेहरान अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की याद में शिबली कॉलेज में तकरीब। चेयरमैन शिबली कॉलेज जड़ावाला, प्रेसिडेंट SSC NGO जड़ावाला सैयद ऊन शाह समेत तलबा और असातिज़ा की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब में तलबा का मुल्क के लिए लासवाल कुर्बानी पर शहीद बच्चों और उनके असातिज़ा को खिराज तहसीन। तलबा ने मिली नगमे और तकारीर के जरिए खिराज तहसीन पेश किया। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 6 बरस बीत गए, लेकिन कौम का गम आज भी ताज़ा है। सैयद ऊन शाह, आज के दिन सफाक दहशतगर्दों ने माओ के मासूम लख्ते जिगर उनसे छीन लिए थे। प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल वहाब, सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। डायरेक्टर तारिक जावेद अहमद शाह, हम सानेहे के हीरोज और उनकी फैमिलीज को सलाम पेश करते हैं। एडमन खलीलुर रहमान। वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक रोंती थाना और उबाड़ो थाना की दबंग कार्रवाई,
थाना अंदल संदरानी की हुदूद कच्चा में पुलिस मुकाबले के बाद बच्ची सनम हजानो को बाजियाब करा लिया गया। रोंती पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि अगवाकार बच्ची सनम हजानो को थाना आंदल संदरानी के कच्चे से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। सब डिवीजन ओबाड़ो और सब डिवीजन रोंती की पुलिस फौरी मुतालिका जगह पर पहुंची तो पुलिस और अगवाकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। 15-20 मिनट के पुलिस मुकाबले के बाद अगवाकार बच्ची को छोड़कर फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। मोरखा 13 दिसंबर को रोंती कच्चा के ऑपरेशन में जिला बेनजीराबाद के मुगवी इशफाक वल्द महबूब हजाना सिकना दौड़ जिला बेनजीराबाद को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया था। ये बच्ची सनम हजानो उसी इसहाक हजानो की बेटी है। ये इसहाक हजानो एक हफ्ता कबल अपनी बच्ची को साथ लेकर नस्वानी आवाज पर इश्क करने आया था, जहां पर यह बच्ची समेत अगवा हो गया था, जिसको 3 दिन पहले रोंती के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन के बाद जबकि उसकी बच्ची सनम हजानो को आज थाना आंदल सुंदरानी कच्चे के इलाके से पुलिस मुकाबले के बाहिफाजत बाजियाब करा लिया है। एसएसपी घोट की जनाब उमर तुफैल साहब ने इस कामयाब कार्रवाई पे पुलिस पार्टी को तारीफी सर्टिफिकेट के साथ नकद इनाम देने का ऐलान किया है। शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदे फैसलाबाद से। तहसील जड़ावाला के थाना सत्याना का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सत्याना ने एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। मुलजिमा सितारा बीबी के घर पर रेड की और सितारा बीबी के साथ उसके 2 साथी गुलाम मुस्तफ़ा और फारूक गिरफ्तार कर लिए गए। उनसे 2140 ग्राम चर्स और 20 लीटर शराब बरामद हुई और थाना सत्याना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब शामिल करेंगे फैसलाबाद से हमारे वन प्लस न्यूज़ की ब्यूरो चीफ आमिद रजा। एसएसपी चौधरी फारूक अहमद हिंदल ने फैसलाबाद की पेट्रोलिंग पोस्ट रोशनवाली, झाल, सेंसरा, खदरवाला, किंजवानी और पुल कहना का विजिट किया। विजिट का मकसद पेट्रोलिंग पोस्ट हाई की कारकर्दगी का जायजा लेना है। इस दौरान एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन चौधरी फारूक अहमद हिंदल ने पोस्ट हाई का नज़्म ज़ब्त, स्टाफ की हाजिरी, रिकॉर्ड, असला क्राइम एंड कंट्रोल की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने पेट्रोलिंग अफसरान को हिदायत की कि अपनी फ़राइज़ मनसबी जांफिशानी से अदा करें, जबकि हाईवेज पर अवाम-उन-नास की भरपूर मदद करें। घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ कच्चू बंडी मोहम्मद हसन सोमरू ने भारी नफरी के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए दरिया के नज़दीक कच्चे के इलाके में एक जगह पर छापा मारा तो मुलजिम रसूल बख्श जागीरानी और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग और खौफ से मुलजिम रसूल बख्श जागीरानी और उसके साथी मुलजिमान फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने पुलिस मुकाबले के बाद मनर्जा झैल चोरी का सामान बरामद किया। दौरान पुलिस मुकाबल बरामद शुदा मसरूका सामान 1 अदद मोटरसाइकिल रिक्शा, 2 अदद सुपरस्टार मोटरसाइकिल, 8 अदद बकरियां, मसरूका माल की तस्दीक करने के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा।